are going to start with a fresh topic named as how to trade in index. That means what are the two things, what are the ways where you can trade in index, right? To trade stocks, you have option that either you can trade them in intraday, either you can trade them like I can show you over here. Either you can trade them in an intraday. When you want to trade Reliance, you just go to the Reliance right over here and buy, click on the buy. You can buy it in long term, you can buy it in an intraday. Just you know, guys. Okay. But we are talking about how to trade index. How to trade index. To trading index, there are two main points where you can trade. Basically, index are traded in FNO. That means known as future and options. Either you can trade it in future, okay, futures, or either you can trade it in options. This segment, when we combine it, when we combine this both segment, इस पूरे के पूरे segment को जब हम combine कर दे तो there comes FNO. It is known as future and options, or known as FNO, future and options, right? These are the 2 points, these are the 2 keys levels where you get to know about how to trade future and options. So future and options are the trading strategy which you can trade in index. Now let's talk about what is future. Let's go in deep. What is future? Okay. What is future and how the futures is traded? Future is nothing. Future means these are the type of lots. ये एक तरीके का lot होता है. These are the type of lot value where you buy and agrees to according to that area. मतलब कि future के अंदर there is number of quantity. There are number of quantity which are mandatory to buy. That means you can buy these quantities. That means you can buy these quantities. These are mandatory to buy. Mandatory to buy. That is known as future. होता क्या है future के अंदर? Future के अंदर there वहां पर कुछ quantity होती हैं. That is 100% needed कि you had to buy them. आपको वो buy करनी ही करनी है. If you are not buying total quantities, you cannot buy future. Okay. अब समझते हैं ये फ्यूचर होते क्या है. क्वांटिटीज आर मैंडेटरी टू बाय, ये तो हम समझ गए. फ्यूचर यू कैन ट्रेड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स. नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं. लाइक मींस करंटली फरवरी चल रहा है तो फरवरी का फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं. ओके. देन यू कैन बाय फॉर मार्च फ्यूचर. देन यू कैन बाय फॉर अप्रैल फ्यूचर. ओके. फरवरी मार्च अप्रैल, आप अप्रैल तक का भी फ्यूचर बाय कर सकते हैं. ओके. दैट मींस फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स टू. आप इस महीने का भी फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, सेकंड मंथ का भी और थर्ड मंथ का भी. बट देयर इज अ क्वेश्चन. दे हैव अ लिमिटेड एक्सपायरी डेज. दैट मींस इनकी जो लाइफ है ना, दे हैव लिमिटेड लाइफ. दे हैव एन एक्सपायरी पीरियड. दैट मींस दे विल एक्सपायर ऑन सर्टेन डे. वो उस दिन एक्सपायर हो जाएंगे. जनरली होता क्या है, फ्यूचर हैव अ एक्सपायरी डेट. दे एक्सपायर्स ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. मतलब कि जो भी मंथ का लास्ट थर्सडे होता है उस दिन ये एक्सपायर हो जाता है. इफ वी टेक एन एग्जांपल ओवर हियर, अगर मैं फरवरी के फ्यूचर की बात करूं, ओके, अगर हम फरवरी के फ्यूचर की बात करें तो फरवरी फ्यूचर इज अबाउट टू एक्सपायर ऑन डे आफ्टर टुमारो. दैट मींस 24th ऑफ फेब. 24th ऑफ फेब को फरवरी का फ्यूचर खत्म हो जाएगा. दैट मींस आप उसके बाद उसको होल्ड ही नहीं कर सकते. आइदर इट इज इन प्रॉफिट, या तो वो प्रॉफिट में या फिर लॉस में. यू हैव टू एग्जिट दैट पर्टिकुलर ट्रेड. आपको वो ट्रेड एग्जिट करनी ही करनी होगी. बट then if you see February, March का future you can hold up to 31st March because last Thursday of the month, मैंने बोला last Thursday of the month, they have a limited life. इनकी life बहुत limited है and limited life is up to that day. That means they will expire on last Thursday of the month. month का जो भी last Thursday होगा they will expire on that particular day. Okay, so February future is going to expire on 24th of Feb. March future will expire on 31st of March. And the April future will expire on 28th of April, right? That means if you want, आप next month का भी future buy कर सकते हैं. You can buy those futures of next months too. Okay, we understand this thing very clearly. So 3 months future you can buy. Either you can buy for Feb, either you can buy for March, either you can buy from April. They have a limited life and the life is limited up to last Thursday of the month. Month के last Thursday तक उनकी life होती है. Over and above that you cannot buy them. Over and above them you cannot sell them. Right? ना आप उन्हें buy कर सकते हैं, ना आप उनको sell कर सकते हैं. Okay, I hope this is clear very much. Second point, number one point is that in this futures too, जो ये futures होते हैं, here also you get a margin. That means holding period is very less. That means you can hold it for last Thursday of that particular month only. But you can buy
नेक्स्ट 2 months टू, आप करंट मंथ का ही बाय कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का भी बाय कर सकते हैं और फार मंथ का भी बाय कर सकते हैं। ओके, थर्ड थिंग इज दैट यू गेट अ मार्जिन। नाउ द क्वेश्चन इज ये फ्यूचर होते कैसे हैं? ऐसा होता है जैसे यू नीड टू बाय रिलायंस का फ्यूचर, तो वो कैसे आएगा आपके ट्रेडिंग ब्रोकर के अंदर लिख के, ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर लिख के कैसे आएगा? रिलायंस आपको फ्यूचर बाय करना है, फैब FUT, ओके, रिलायंस मार्च FUT, देन रिलायंस अप्रैल FUT। इस तरीके से वो फ्यूचर लिख के आता है। दैट मींस करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ, इस तरीके से आप फ्यूचर को यूज कर सकते हैं। मतलब कि इस तरीके से वो फ्यूचर आपके दिख जाएंगे वहां पे, यू कैन बाय देम। ओके, हम डायरेक्टली टर्मिनल पर ही चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड ये किस तरीके से दिखते हैं। दिस इज द फ्यूचर विच आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। ओके, ये फ्यूचर मतलब कि we are going to understand about the future over here. This is a trading terminal जिसके ऊपर हम आ गए हैं। If we need to go over there and we search here something Reliance, अगर मैं यहाँ पर Reliance सर्च करता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे FUT, Reliance FUT, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा Reliance FUT, I have 3 futures coming over here, right? They are traded in NFO. NFO means future and options, right? Futures and options, FNO means future and options, right? I can buy Reliance Fab, I can buy Reliance March, I can buy Reliance April. क्या मैं मई का बाय कर सकता हूँ? नो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नॉट एट ऑल। दैट मींस आई कैन बाय फॉर 3 months. दैट मींस करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। ओके, दिस इज द पॉइंट। नाउ अंडरस्टैंड दैम इन डिटेल। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिलायंस फैब फ्यूचर आ गया। अब आई वांट टू बाय रिलायंस का फैब का फ्यूचर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना बाय बटन पर, जैसे ही मैं बाय बटन पर क्लिक करूंगा ओवर हियर, I can buy 250 quantities. That means these are defaulted quantity जो मेरे को buy करनी है। If I write here, I want to buy 2 quantity, क्या आ रहा है? Value must be greater than or equal to 250. That means it is mandatory to buy 250 quantities. Please understand what I am saying. It is mandatory to buy 250 quantities of Reliance. These are defaulted quantities. Now I want to buy 275. Can I buy 275 quantities? Not at all. What is written over there? That means value must be greater than 250 or and 500. That means you can buy them in multiples of 250 only. आप इनको 250 के multiples पर ही buy करेंगे. Over and above that you cannot buy or you cannot sell them. You cannot buy or you cannot sell them. All right, simple guys. So in simple words, futures are traded in lot. Future को lot के अंदर trade किया जाता है. And you can trade multiple lots at a single period of time, right? I hope you are getting my point very clear. Just a second guys. You can trade multiple lots at a single period of time. एक ही टाइम के अंदर आप multiple lots को ट्रेड कर सकते हैं। एक ही टाइम बाद आप multiple lots को ट्रेड कर सकते हैं। That means multiple quantities you need to buy. Okay, अगर मैं रिलायंस का फ्यूचर बाय करता हूं, 250 क्वांटिटी आई हैड टू बाय, who fixes this quantity? This quantity is fixed by the exchange. That means the stock exchange. We know there are 2 stock exchanges. Number 1 is NSE and BSE. Okay, BSE के ऊपर कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड नहीं होते, NSE के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। Only there are 2 stock exchanges, BSE और NSE. NSE के ऊपर सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप ट्रेड कर सकते हो एंड आप BSE के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसलिए वहां पर लिखा था NFO, NSE फ्यूचर एंड ऑप्शंस। Okay, now the question is either you can trade them in intraday, either you can trade them in overnight. Overnight का मतलब है कि you can carry them up till 24th February. Please understand what I am saying. अगर इनका आ रहा है यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ ओवरनाइट, जब हम रिलायंस का एक स्टॉक बाय करते हैं, राइट, आई वांट टू बाय रिलायंस का स्टॉक, तो देयर आर 2 ऑप्शंस कम्स, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है दैट यू कैन बाय इट इन इंट्राडे, दूसरा आता है लॉन्ग टर्म, राइट। यहां पर क्या आएगा? whenever you are trading future and options, whenever you are trading future and options, वहां पर 2 वर्ड लिख के आएंगे, either you can trade them in intraday or either you can carry overnight. Overnight का मीनिंग सिंपल सा ये है, overnight means that means you can carry them, overnight means that you can carry them up till the date of expiry. अभी इसकी एक्सपायरी की डेट कब है? 24th of Feb. 24th of Feb is the expiry date for February future. So 24th of Feb futures are going to expire. That means अगर मैं Feb का फ्यूचर बाय करता हूं रिलायंस का on 24th of Feb,
if I want to hold it or not want to hold it, automatically it will be cutted from my positions के अंदर जीरो आ जाएगा. Okay, that means over and above this period I cannot hold, over and above this period I cannot hold Reliance का future. Okay, I cannot hold Reliance का future after the day of expiry. तो यहाँ पर दो ऑप्शन होता है whenever you are trading F&O future and options, you need to buy minimum quantity which will be the default quantity. इसके multiples के अंदर आप buy कर सकते हो. Second number one thing, you can trade them in intraday, you can trade them in overnight. Overnight का मतलब है कि till the day of expiry you can carry them. If you want to carry it for tomorrow, that means I buy it today, I will be selling it after 10 days or 15 days. Till the day of expiry, before the day of expiry, you need to choose overnight position. All right, overnight position you need to choose over here. Okay, second number one point, if you buy it in overnight, या तो आप इसे carry करके लेके जाएं, that means you want to sell it tomorrow, day after tomorrow, or in today, either you want to carry it today, either you want to carry it and overnight, the amount will remain same. जो पैसा है वो same रहेगा. That means amount, that means जो margin required है वो आपकी same रहेगी. Amount margin required will be same at this point of time. Okay, आप intraday के अंदर करें 1,33,000, overnight के अंदर करें 1,33,000. That means quantity will remain same all over the time. Okay, simple. Now the question is, ये रिलायंस का जब मैं 250 स्टॉक बाय कर रहा हूं, व्हेन यू बाय रिलायंस का स्टॉक के हियर यू आर बाइंग 250 स्टॉक्स, आप यहां पर रिलायंस के 250 स्टॉक बाय कर रहे हैं, रिलायंस के 250 स्टॉक बाय कर रहे हैं. एज सून एज इट विल स्टार्ट मूविंग अबव 250, जैसे ही वो 2386 उसका प्राइस है, 2386 से वो ऊपर जाना स्टार्ट होगा, आपका प्रॉफिट इनटू मल्टीपल्स ऑफ 250 हो जाएगा. जस्ट टेक एन एग्जांपल, 2386 से वो 2390 चला गया, 4 रुपए ऊपर. So 250 into 4 you are getting profit. 250 into 4, that means 1000 rupees you are getting profit over here. Okay, 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पर हर हालत के अंदर. I hope you are getting my point what I am saying. रिलायंस का फेब का फ्यूचर व्हेन यू आर बाइंग, आपको 250 क्वांटिटी बाय करनी है 250, और 2386 से जो उसका प्राइस है उससे वो जितना भी ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट इनटू 250 मल्टीपल्स के अंदर होता चला जाएगा. ओके, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. सो रिलायंस का स्टॉक व्हेनेवर यू आर बाइंग, रिलायंस का स्टॉक यू आर बाइंग ओवर हियर, अगर आप रिलायंस की 250 क्वांटिटी बाय करते हैं, ओके, इंट्राडे के अंदर, अगर इंट्राडे के अंदर 250 क्वांटिटी बाय करते हैं तो यू हैड टू पे 1,19,000 रुपीज, 1,19,000 पे करना पड़ेगा. ओके, बट यू कैन नॉट कैरी इट टुमारो, आप इसे आप कल कैरी नहीं करके ले जा सकते. अगर मैं लॉन्ग टर्म के अंदर बाय करता हूं 250 क्वांटिटी रिलायंस की, तो वो मुझे कितने की पड़ेगी? ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज. प्लीज फोकस नाउ ऑन माय स्क्रीन. इफ यू वांट टू बाय 250 क्वांटिटी रिलायंस एंड यू थिंक कि अभी रिलायंस 2389 पर है और यहां से ये ऊपर उठ के 235 मतलब कि 2500 तक चला जाएगा, 2500 तक. ओके, बट आई नीड मार्जिन. व्हाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस? इफ यू हैव गट्स एंड इफ यू नो माय एनालिसिस इज परफेक्ट, मैंने जो एनालाइज किया वो परफेक्ट है, तो ये स्टॉक यहां से उठ के ऊपर भाग जाएगा. मतलब कि मोटे मोटे तौर पे ये बोला जाता है यहाँ पर कि अगर आप रिलायंस के इंट्राडे के अंदर 250 क्वांटिटी बाय करेंगे, दैट विल कॉस्ट यू 1,19,000. लॉन्ग टर्म के अंदर 250 क्वांटिटी विल कॉस्ट यू 6 लाख. टू गेट द बेनिफिट ओवर देयर, I buy Reliance का future. I know Reliance will be reaching up to within 1 month or within 2 months. Reliance का जो प्राइस है वो चला जाएगा 2,500 और 3,000, प्राइस ऊपर चला जाएगा. I buy Reliance का future overnight. Okay, 250 क्वांटिटी में बाय कर रहा हूँ, 250 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ. Rather than paying 6 lakh rupees, I am only paying here 1,33,000 rupees. That means हमको यहाँ पर मार्जिन मिलता है. अगेन फ्यूचर के ऊपर आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है. जो भी स्टॉक का प्राइस होता है, वो 6 लाख रुपए के पड़ रहे थे, मतलब 599, अगर आप इसको ये 133 के पड़ रहे हैं, अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो वैल्यू उतनी निकल कर आएगी. ओके, तो इट इज इन सिंपल वे. रिलायंस का फ्यूचर बाय करने का बेनिफिट ये है कि आई हैड टू पे लेस अमाउंट, आई विल गेट दैट नंबर ऑफ क्वांटिटी रेदर देन पेइंग 6 लाख रुपीज. जहां मेरे 6 लाख रुपए लग रहे थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे 1,33,000 रुपीज लग रहे हैं. दैट्स व्हाई आई बाय रिलायंस का फ्यूचर. तो व्हाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस, द मेन क्वेश्चन, व्हाई future and options trading? Future and options trading is because
वी गेट मैक्सिमम बेनिफिट ओवर है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग हम किस लिए करते हैं? बिकॉज हमें यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। व्हाट वी गेट वेयर? वी आर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट ओवर हियर ऑफ मार्जिन। इंट्राडे के अंदर मैं अगर रिलायंस का स्टॉक बाय करूं 250 क्वांटिटी बाय करूं, मेरे को 6 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन फ्यूचर बाय करूं आई हैड टू पे 1,33,000। ड्रॉबैक्स क्या है? देयर इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ड्रॉबैक्स क्या है? देयर इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है ना, दैट इज लेस। जो ड्रॉबैक क्या है? दैट यू कैन नॉट होल्ड देम आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड। एक्सपायरी पीरियड के बाद आप इनको होल्ड नहीं कर सकते। एक्सपायरी पीरियड के बाद आप इसको होल्ड कर ही नहीं सकते हो। इट इज नॉट अलाउड टू होल्ड आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड, राइट? बेनिफिट क्या है? आई एम गेटिंग मार्जिन। इफ आई नो द व्यू, इफ आई नो द व्यू एंड आई एम गेटिंग एक्सपेक्टेड मार्जिन, अच्छा पैसा बन रहा है, तो अमाउंट ऑफ गेटिंग डबल्ड आर मोर। अब मान लीजिए दे रहा हूं, अब मैं इस स्टॉक के 250 क्वांटिटीज बाय करने के 1,33,000 रुपीज दे रहा हूं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर रिलायंस का स्टॉक अभी 2386 पर चल रहा है, अगर ये 2386 से एक महीने के अंदर 2500 चला जाए, 2386 से 2500, सॉरी 2386 से 2500 चला जाए, आई एम गेटिंग 114 पॉइंट। ओके, 114 पॉइंट मेरे को मिल रहे हैं एंड क्वांटिटी आई एम गेटिंग हाउ मच? 114 पॉइंट मेरे को मिल रहे हैं यहां पर एंड आई एम गेटिंग क्वांटिटीज 250। हाउ मच इज माय प्रॉफिट? 28,500 इज माय प्रॉफिट, राइट? फॉर दोज रीजंस, फॉर इन रीजंस के चक्कर में वी गेट टू गेट एंटर्ड इन दी, इसलिए हम जब भी मार्केट के अंदर उतरते हैं, whenever we enter into this market, we try to focus on futures and options because there are various benefits too, there are some drawbacks too. Okay, अब ये जो 250 क्वांटिटी है रिलायंस के लिए, इफ आई टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, अगर मैं इन्फोसिस का फैब का फ्यूचर बाय करना चाहता हूं, ओके, फैब का फ्यूचर बाय करना चाहता हूं, अब हमें मार्केट ये भी वैल्यू दे रहा है कि आप फ्यूचर जो बाय करना चाहते हैं, आप करंट मंथ का बाय करो, नेक्स्ट का बाय करो, फार का बाय करो, इट्स योर चॉइस। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि इन्फोसिस अप्रैल तक 2,000 रुपीज का हो जाएगा, अप्रैल तक होगा ना, राइट? तो वाई विल आई बाय फरवरी का फ्यूचर और मार्च का फ्यूचर? नो, आई विल स्किप दैम, आई विल डायरेक्टली बाय अप्रैल का फ्यूचर। अब डिफरेंस क्या है? जो फेब का फ्यूचर है दैट विल कॉस्ट यू 93,000, मार्च का फ्यूचर दैट विल कॉस्ट यू 93,000, अप्रैल का फ्यूचर दैट विल कॉस्ट यू 93,000। तो व्हाई टू बाय द फ्यूचर विच इज नियर? जो बिल्कुल पास में है वो क्यों बाय करना? नो ना, इफ यू हैव अ व्यू कि इतने दिन बाद ये जाएगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का बाय करो, अभी का क्यों बाय करना है? दिस इज द मेन ऑप्शन व्हेन यू गेट बेनिफिट ऑफ दीज एरिया। ओके, अब समझते हैं इन्फोसिस का अगर एक स्टॉक बाय करोगे आप, इन्फोसिस का एक स्टॉक अगर आप बाय करोगे दैट विल कॉस्टिंग यू 1,734। ओके, इन्फोसिस का अगर आप फ्यूचर बाय करोगे इंट्राडे के अंदर दैट विल कॉस्ट यू 93,000 रुपीज। क्वांटिटी कितनी बाय करनी पड़ेगी? 300। कैन आई बाय 30? नॉट अलाउड, 300 बाय करनी पड़ेगी, राइट? देन 350? नो, मल्टीपल्स ऑफ 300, देन 600 यू कैन बाय। क्लियर? दैट मींस व्हेनेवर यू आर बाइंग इन्फोसिस का फ्यूचर, जब भी आप इन्फोसिस का फ्यूचर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, whenever you are trying to buy Infosys का future, when you are jumping to buy Infosys का future, you had to and take minimum 300 quantity, इससे quantity कम हो ही नहीं सकती। Okay, if you buy it for overnight, it will cost you 93, buy it for intraday, the cost will same। Okay, अगर मैं Infosys की 300 quantity buy करूं intraday में, intraday के अंदर they will cost me 1 lakh, they will cost me 1 lakh, और long term के अंदर they will cost me 5,20,000। I am fool. I know that Infosys will reach from 1,734, Infosys will reach to 2,000 within a month. I am fool. No, if I have a perfect knowledge of the stock market, I have perfect knowledge of technical analysis, I have perfect knowledge of technical analysis, I will never buy. I will go and buy future by paying 93,000 rupees. My margin is low. My margin is low, right? Margin requirement, that the amount which I had to pay is less. Second benefit which I am getting over here, amount which I am paying is less. जो अमाउंट दे रहा हूं वो तो कम है ही। दूसरी चीज मेरे को क्या मिल रही है? आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर देयर, मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अमाउंट जो the amount which I am paying is less, the making money is more।
सपोज टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इन्फोसिस विद इन 2 months 2000 रुपीज हो जाए, right now the value is 1728, I am getting 272 point, okay, I am getting 272 point, 272 point into per lot 300, that means मैंने, मेरी कॉस्ट लगी 93,000 रुपीज, my cost which is accusing out जो लग रही है वो है 93, my profit is 81,600, almost near to double my capital, right? So why people trade in futures? Because if a person have a perfect view and if a person have a perfect knowledge that this stock will go up, यहां से ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, rather than paying 5 lakh 6 lakh rupees of those particular quantity, they buy and jump into the future. वो फ्यूचर बाय करता है टू गेट मैक्स प्रॉफिट आउट ऑफ दैट एरिया। ऑलराइट, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फ्यूचर। सो फ्यूचर यू कैन बाय फॉर करंट मंथ, फ्यूचर यू कैन बाय फॉर नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर यू कैन बाय फॉर फार मंथ। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आप कोई भी बाय कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कौन सा आपको बाय करना है, व्हाट इज योर व्यू। ओके, सेकंड नंबर वन थिंग जो हमने पास्ट सेशंस के अंदर बात करी है कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। अगर किसी स्टॉक के अंदर व्यू है हमारा कि ये स्टॉक 1 महीने बाद 100 रुपए का स्टॉक है, ये 1 महीने के बाद 70 रुपीज का हो जाएगा, बट आफ्टर 1 मंथ होगा ये। ओके, तो आई कैन सेल इट इन इंट्राडे 10-20 रुपए के लिए इंट्राडे, बट फॉर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है कि ये स्टॉक नीचे जाना वाला है, हाउ टू डू दैट, उसको कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। ओके, उसको किया जाता है, आई कैन नॉट सेल इन लॉन्ग टर्म, मैं लॉन्ग टर्म के अंदर अगर सेल करना चाहूँ तो मार्जिन रिक्वायर्ड इज 0। तो व्हाट वी टेक बेनिफिट ना, लेट आई एम रिजॉल्विंग अबाउट दैट इशू, ये क्वेश्चन होगा आपको ऑन दैट डे, हमने जो डिस्कस किया था। आप फ्यूचर को इंट्राडे के अंदर सेल भी कर सकते हो और ओवरनाइट भी सेल कर सकते हो। दैट मींस अगर आपका व्यू है कि अप्रैल या मार्च तक इन्फोसिस 1400 रुपीज का हो जाएगा, जिस कॉस्ट पर अभी है यहाँ से 300 रुपए गिर जाएगा, यू कैन सेल दिस पर्टिकुलर थिंग, आप इसे सेल कर सकते हो। दैट फ्रॉम दिस लेवल यू कैन सेल दिस पर्टिकुलर थिंग, यहां से आप इसको सेल कर सकते हो। ओके, तो व्हाट्स द बेनिफिट यू आर गेटिंग ओवर हियर, जो आप बेनिफिट लेते हैं, जो आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ पर, राइट, द नंबर वन बेनिफिट यू आर गेटिंग ओवर हियर इज दैट, जो सबसे पहला बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है, दैट मींस यू कैन सेल इट फॉर ओवरनाइट टू, दैट मींस फॉर लॉन्ग टर्म टू। लॉन्ग टर्म का मतलब है दैट मींस यू कैन सेल इट फॉर 2 to 3 months टू, आप 3 मंथ तक के लिए इसको सेल कर सकते हैं, एंड यू कैन इमेंस, you will understand that what are the benefits I am getting over here। मतलब कि in short अगर मैं बात करूं, in short in simple words अगर मैं बात करूं, futures when we have discussed about that कि Infosys के स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म में सेल नहीं कर सकता, that is because it is not allowed। if you want to sell, if you think कि ये स्टॉक आने वाले 2-3 महीने के अंदर गिरने वाला है, आने वाले 2 you can sell future of that particular thing, आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं, आप उसका फ्यूचर सेल कर सकते हैं टू गेट मैक्स प्रॉफिट ऑफ दैट एरिया। ओके, प्राइस विल गो अप, यू विल मेक प्रॉफिट, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो यू विल मेक लॉसेस। ओके, तो सिंपल वर्ड्स, आई होप दैट डाउट हैज बीन क्लियर्ड, फ्यूचर कैन बी सोल्ड फॉर एवरीथिंग। ओके, अब अगर हम और बात करें, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अभी हमने इनकी बात करी, इफ आई वांट टू चेक टीसीएस का फ्यूचर, if I want to buy TCS 1, I had to buy 150 quantity, it will be costing me 1,14,000 rupees। okay, I can buy it to, I can sell it to, मैं इसको बाय भी कर सकता हूँ और सेल भी कर सकता हूँ। और वैल्यू कितनी है, और वैल्यू कितनी लग रही है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कितनी लग रही है इसके अंदर, राइट, वैल्यू कितनी लग रही है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली ए ओनली वैल्यू कितनी लग रही है, ओनली 1,14,000 रुपीज। अगर मेरे को टीसीएस के 150 क्वांटिटी ही बाय करनी है, अगर टीसीएस की 150 क्वांटिटी बाय करनी है, दैट विल कॉस्ट मी 5,37,000, बट 5,37,000 here if I want to buy TCS का फ्यूचर, I can only pay 1,14,000। these are the benefit which you get while trading, while investing, or while keep the word anything भी बोल सकते हैं। these are the benefit when you get you trade in FNO, right? तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, यू कैन ट्रेड देम, बट फ्यूचर्स के अंदर सबसे पहले बेनिफिट आप समझ गए होंगे दैट यू हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, द टाइम पीरियड इज लिमिटेड, प्रॉफिट्स कैन बी मेड मोर, might be doubled, your capital might be doubled in a month or 2 months, but there are some drawbacks, वहां पर drawbacks भी हैं, that means positive points भी हैं और
नेगेटिव पॉइंट। ये जो फ्यूचर की लॉट वैल्यू है, दीज आर मैंडेटरी टू बाय, जैसे मैंने बोला, इनकी जो लॉट वैल्यू है दैट इज डिसाइड बाय द एक्सचेंजेस, वो एक्सचेंज डिसाइड करता है। ओके, एक्सचेंज डिसाइड्स दैट वैल्यू, एक्सचेंज डिसाइड करके देता है उस वैल्यू को, नो अदर पर्सन डिसाइड दैट वैल्यू, राइट? एक्सचेंज डिसाइड करता है उसको, नो अदर पर्सन कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर। ओके, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ओवर हियर, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये चीज है, राइट? लॉट की वैल्यू। ओके, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, क्वेश्चंस और क्वेरीज। आज हमने फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस किया। इन कमिंग डेज वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्शंस, हाउ ऑप्शंस वर्क्स। ओके, नाउ यू कैन आस्क